یہ تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن فرٹیلائزر منگوانا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی۔ اور اس سال مجھے امید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فصل پیدا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے گندم اور کپاس منگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے 16 مہینوں میں $575 ملین کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں منگوانی پڑے گی اس حد تک، اور اب مزید $500 ملین یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ $1 ارب 280 ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان 16 ماہ میں ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھیں، اس کے باوجود کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے باوجود کہ IMF سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے میرے بھاشا یہ منجی اس کے اوپر ہم نے منصوبہ بندی کر کے لگائے ہوتے تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں کے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں معاشی حالت یہ نہ ہوتی۔ آج پاکستان سر اٹھا کر دنیا میں اپنا سفر طے کر رہا ہوتا اور ہمیں کشکول کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ وہ فاش غلطیاں بلنڈرز من حیث القوم ہم سے ہوئی ہیں، لہذا آج وقت آ گیا ہے کہ اب IMF کے اس پروگرام کے بعد ہمیں اس ملک کے غریب عوام کو، کسان کو، ہاری کو، ابھی پرسوں میں نے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا، یہ سننے والی بات ہے، یہ خالی IMF کی کڑی شرط نہیں تھی، وہ شرط تو تھی ان کی، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی تھی؟ کیوں؟ ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ، اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں، جو بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ہمارا نظام فرسودہ اور انیفیشنٹ ہے، اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ تیسری بات، یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے، جہاں پر آج کے کام لائق تحسین میں اس کی بھی بات کروں گا، وہاں پر مل کر وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، ایک کا بل دوسرے کو دے دیا، تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا، اور چوتھی اور سب سے خطرناک بات کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں۔ یہ کل مجموعہ، یہ تقریباً غور سے سنیے منسٹر صاحب، ذرا غور سے بات سنیں، منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں، یہ ملا کر سالانہ 400-450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے، اور یہ جو سرکلر ڈیٹ ہے جس کو کہتے ہیں گردشی قرضہ بجلی کا خالی، یہ 2.5 ٹریلین ہے، کتنا ہے بھائی؟ 2.3
2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, हारी का कोई कसूर नहीं है, मजदूर का कोई कसूर नहीं है, बेवा और यतीम और एक तालिब इल्म का कोई कसूर नहीं है, एक नर्स और डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का, बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का, और उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ताकतवर बनाया है, ये सब उनका कसूर है। और इसका नुकसान, इसका बोझ गरीब आदमी के ऊपर, इस मुल्क के तूल अर्ज में, चाहे वो डेरा इस्माइल खान है या टांक है या बन्नू है या पिशावर है या कोयटा है या लाहौर है या कराची है, ये करोड़ों लोग, गरीब लोग जो सुबह फजर के वक्त उठते हैं, अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं और नमाज फजर अदा करके रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल जाते हैं, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो या बारिश हो या तूफान हो। लेकिन उसके बावजूद भी रिज़्क़े हलाल कमाने के बाद वो जब घर आते हैं तो उनको फैसला करना होता है कि आधी रोटी देनी है या पौनी रोटी देनी है, या दूध देना है या चीनी के बगैर दूध पिलाना है, दवाई कहाँ से लानी है। और अशराफिया जिनकी वजह से ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी आटा अगर खुदा ना खास्ता वो 1 लाख रुपया किलो भी हो जाए तो वो अदा कर सकते हैं। गरीब 1 किलो आटा आज खरीदने जाए तो उसके पसीने छूट जाते हैं। हजरत मौलाना ये है जिस निज़ाम का आपने इशारा किया और जिस ये मेरे भाषा ये मुंजी उसके ऊपर हमने मनसूबा बंदी करके लगाए होते तो डेरा इस्माइल खान और बन्नू के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में माशी हालत ये ना होती। आज पाकिस्तान सर उठाकर दुनिया में अपना सफर तय कर रहा होता और हमें कशकोल की जरूरत ना पड़ती। ये वो फाश गलतियां, ब्लंडर्स मिनहसल कौम हमसे हुई हैं। लिहाजा आज वक्त आ गया है कि अब IMF के इस प्रोग्राम के बाद हमें इस मुल्क के गरीब आवाम को, किसान को, हारी को, अभी परसों मैंने फैसला किया बिजली की नरखों का। ये सुनने वाली बात है, ये खाली IMF की कड़ी शर्त नहीं थी, वो शर्त तो थी उनकी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शन भी कौन सी थी? क्यों? हमारी जो बिजली की तरसील में बेपनाह, उसको कहते हैं लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली ट्रांसमिट होती है। हमारा निज़ाम फरसूदा और इनएफिशिएंट है और उसमें बेपनाह नुकसान होता है। तीसरी बात, ये जो वापडा और ये जो उनके अहलकार हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, जहां पर आज के काम लायक तहसीन में उसकी भी बात करूंगा, वहां पर मिलकर वो लोगों से पैसे बटोरते हैं। एक का बिल दूसरे को दे दिया, तीसरे का बिल चौथे को दे दिया। और चौथी और सबसे खतरनाक बात कि बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये तकरीबन, गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। ये मिलाकर सालाना 400 साढ़े 400 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है। और ये जो सर्कुलर डेट है, जिसको कहते हैं गर्दशी कर्जा बिजली का खाली, ये 2.5 ट्रिलियन है। कितना है भाई? 2.3, 2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, हारी का कोई कसूर नहीं है, मजदूर का कोई कसूर नहीं है, बेवा और यतीम और एक तालिब इल्म का कोई कसूर नहीं है, एक नर्स और डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का,
बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का और उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ताकतवर बनाया है, ये सब उनका कसूर है। और इसका नुकसान, इसका बोझ गरीब आदमी के ऊपर, इस मुल्क के तूल अर्ज में, चाहे वो डेरा इस्माइल खान है या टांक है या बन्नू है या पिशावर है या कोयटा है या लाहौर है या कराची है, ये करोड़ों लोग, गरीब लोग जो सुबह फजर के वक्त उठते हैं, अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं और नमाज फजर अदा करके रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल जाते हैं, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो या बारिश हो या तूफान हो। लेकिन उसके बावजूद भी रिज़्क़े हलाल कमाने के बाद वो जब घर आते हैं तो उनको फैसला करना होता है कि आधी रोटी देनी है या पौनी रोटी देनी है या दूध देना है या चीनी के बगैर दूध पिलाना है, दवाई कहाँ से लानी है। और अशराफिया जिनकी वजह से ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी आटा अगर खुदा ना खास्ता वो 1 लाख रुपया किलो भी हो जाए तो वो अदा कर सकते हैं। गरीब 1 किलो आटा आज खरीदने जाए तो उसके पसीने छूट जाते हैं। हजरत मौलाना ये है जिस निज़ाम का आपने इशारा किया और जिस तब्दीली के लिए आपने एक बाकायदा आपने पूरा अपना वजन डाला और पूरी कौम को दिखाया कि इस मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत जो कि नाम लेती हो पाकिस्तान का और पाकिस्तान दुश्मनी करे, ऐसी हुकूमत, मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि इमरान नियाज़ी जो नौजवानों को अगर उन्होंने बाइख्तियार बनाना था तो उनको तो 4 साल वफाक में अल्लाह ताला ने दिए और इस सूबे में 10 साल दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने वज़ाइफ दिए उन्होंने इस सूबे में, यानी डेरा गाजी खान से लेकर और वहां तक पारा चनार तक, कितने वजीफे दिए उन्होंने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता या मैं खुद नुमाई के लिए नहीं आया, लेकिन सिर्फ मवाजने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं 10 साल रहा खादम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में, तो लाखों बच्चों और बच्चियों को जो इंतहाई ज़हीन काबिल मगर उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके वालिदैन के पास रिज़्क़े हलाल कमाने के बावजूद उनको हमने वज़ाइफ दिए अरबों रुपए के और लाखों